अपन जो खाते हैं, बाथरूम जाते हैं यूरिनेशन के लिए, लेटरिन जाते हैं, वो सब बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं, उसको यूजुअली सिखाना नहीं पड़ता है, राइट? इट इज नॉट टू बी टॉट। उसी तरह से सेक्स जो है वो एक बेसिक इंस्टिंक्ट होता है, तो उसके आजू बाजू का जो है वो हम थोड़ा लर्न कर सकते हैं। पर सेक्स एजुकेशन के बारे में, व्हाट इज सेक्स, वो हमें सिखाने की जरूरत नहीं रहती है, बराबर? वी कम टू लर्न अबाउट इट by ourselves, and these are some topics which we are going to talk today, discuss today, and I would like to have a lot of questions from you all. First of all, thank you very much to give me opportunity to stay with young people, students. I really like to be with them, and starting the session with very basic things which we learn in 8th standard or 9th standard, that when the mating between male and female occurs, male have 46XY chromosomal this thing, and female has 46XX, and mating occurs, and when the female conceives or when the baby is delivered, 50% of the genetics is from father and 50% from mother. Secondly, when the baby is conceived, the lady conceives a baby at 1.5 months, 6 weeks में अपने को पता चल जाता है, the fate is decided that whether it will be a girl or it will be a boy. There is a testis defining factor which lies on Y chromosome. So 1.5 months से ही पता होता है कि there will be a baby girl or baby boy. सेक्सुअली इनएक्टिव फीमेल जो रहते हैं उसमें हाइमेन इज इंटैक्ट, द रास्ता जो होता है वो बंद होता है, देयर इज ए पर्दा होता है जिसमें सिर्फ एक छेद होता है जहां से मेंस्ट्रुएशन आता है. सो शी इज वर्जिन इफ द हाइमेन इज इंटैक्ट, दैट इज व्हाट वी बिलीव. बट मेल के लिए, बॉयज के लिए ये जानना पॉसिबल नहीं रहता है whether he is sexually active or not. This is a basic difference we can say. And multiple partners, sexually active जो बच्चे होते हैं, if we go for multiple partners, it will lead to sexually transmitted disease like AIDS. And we are talking on the occasion of actually AIDS, World AIDS Day. वो थोड़ा सा postpone हुआ due to your exams, I guess. And very early marriage or a very early sex life, if it starts, that is बच्चेदानी के मुंह के cancers का. These are some photographs inside our mother's womb. We look like this, and this is a changing thing, and some changes are visible changes, some are non-visible changes. And जब आ जाता है तब up to 1 month हम लोग उसको neonate बोलते हैं. Up to 1 year they are infants, then 1 to 3 years they are toddlers, girl, and 6 to 11 years again it is an adolescent age group. And yes, this is adult. आप लोग अभी adulthood में हो, right? You have right to vote. So but you are on the edge. She is sitting on the edge, you can see here, and you are sitting on the edge. Again, we will not go in very much detail because this age is already passed. By now, the girls already started with their menstruation, and मैं इतना बोल दूंगी कि by the time 18-19 years के जब हो जाते हैं, girls, boys दोनों, it is the time of adulthood. Now you are adult, so you have already passed all these phases of changing. गर्ल्स की जो ब्रेस्ट चेंजेस होते हैं, जो जेनाइटल एरियाज में चेंजेस होते हैं, दे हैव नाउ कैपेसिटी टू प्रोक्रिएट द प्रोजेनी लाइक दैट. अभी
मेंस्ट्रुएशन जो गर्ल्स में स्टार्ट होता है उसके बारे में आई थिंक आप लोगों की बायोलॉजी 11th से छूट गई होगी, यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सो मेंस्ट्रुअल फ्लो ये बॉयज के लिए जानना बहुत जरूरी है कि गर्ल्स जो रहती है उनको मंथली मेंस्ट्रुएशन आता है, और ये जो मेंस्ट्रुएशन है वो क्या है, तो हर मंथ में नेचुरली भगवान ने ऐसा क्रिएट किया है कि हर मंथ में यूट्रस का एक प्रिपरेशन होता है टू फॉर द बेबी कंसीव होने के लिए। जो सेक्सुअल एक्ट होता है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है एंड बेबी कंसीव होता है तो वो एंडोमेट्रियम प्रिपेयर रहता है बच्चेदानी के अंदर, और बेबी नहीं कंसीव होता है तो वो जो एंडोमेट्रियम है वो शेड ऑफ हो जाता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं, जो हर मंथली फीमेल्स को होता है। एंड दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगेन आपने शायद 8th and 9th में वो पढ़ा भी है। जनरली वो स्टार्ट होता है 11 to 14 इयर्स के बीच में। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल जो फ्लो है वो 3 to 7 डेज तक होता है, एंड 25 से 35 डेज का जो साइकिल रहता है इट इज अ नॉर्मल साइकिल। 2 to 4 सैनिटरी पैड्स यूज होते हैं, दैट इज अ नॉर्मल फ्लो। अगर हम लोग ml में गिनती करें तो ऑलमोस्ट 40 ml 50 ml ब्लड लॉस हर एक फीमेल को हर महीने में होता है, बट इफ इट इज मोर देन 80 ml देन इट इज हैवी ब्लीडिंग। थोड़ा सा पेन रहना वो भी नॉर्मल है, और नॉर्मल मंथली रेगुलर एमसी आने का स्टार्ट होने में लगभग 18 इयर्स तक वो स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स में। दिस इज external genital organs of the female, and here we can see this from outside. This is a anus जहां से हम लैट्रिन पास करते हैं। This is opening, vaginal opening. From there जो मेंसिस आता है बाहर, बराबर, एंड उसके ऊपर एक छोटा सा होल है, दैट इज a urethral opening. These are external genitalia. उसके हमने फोटोग्राफ्स यूजुअली पढ़ाई के टाइम पे देखे रहते हैं। अभी जो दिस इज ये जो वजाइनल ओपनिंग है वो अनमैरिड गर्ल, सेक्सुअली इनएक्टिव जो गर्ल है उसमें एकदम 1 फिंगर के जितना रहता है। आफ्टर फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स वो ऑलमोस्ट इजीली 2 फिंगर इंट्रोड्यूस करे इतना होता है। ये वजाइनल ओपनिंग के अंदर अगर हम इंटरनल ऑर्गन जो बाहर से नहीं दिखते हैं, वजाइना इटसेल्फ, उसका लेंथ लगभग 8 सेंटीमीटर जितना होता है। सर्विक्स ओपन्स इनटू द वजाइना, दिस इज अ यूट्रस जहां पे बच्चा रहता है। दिस इज अ फैलोपियन ट्यूब जहां पे नली बोलते हैं, उसके नीचे ये होता है ओवरीज जहां से अंडे आते हैं। अंडा विल ट्रैवल टू द फैलोपियन ट्यूब, और अगर सेक्स होता है मेल एंड फीमेल के बीच में तो ये यहाँ से सेक्स हुआ तो जो सीमेन है उसमें स्पर्म है वो दैट हैज टू ट्रैवल थ्रू ऑल द थिंग्स, यहाँ से यहाँ तक स्पर्म आ जाएंगे, वहां पे बच्चा फर्टिलाइज होगा, एंड देन बच्चा विल कम इनटू द यूट्राइन कैविटी एंड गेट स्टक टू द यूट्राइन कैविटी। और ये जो पूरा प्रोसेस है it is regulated by our brain hypothalamus. Even the sexual act also is regulated from the brain level. Now there are something where we have to contact doctor which is not normal. तो मेंसेस अगर 15 साल तक चालू नहीं हुआ या फिर 10 साल से पहले ही चालू हो गया, बहुत एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है, there is excessive pain, this is the time you have to consult your doctor. दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लड़कियों में 9 इयर्स के पहले और बच्चों में 10 इयर्स के पहले अगर ग्रोथ हो रही है जेनाइटल ऑर्गन्स की एक्स्ट्रा ज्यादा जल्दी प्यूबिक हेयर्स आ गए एडल्ट के जैसे 9-10 इयर्स में, तो इट इज अ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी एंड तभी डॉक्टर को मिलना जरूरी है। बिकॉज अगर इतना जल्दी ग्रोथ हो जाएगा तो जो बोन होते हैं वो जुड़ जाते हैं जल्दी, एंड देन फिर उसके बाद में हाइट नहीं बढ़ती है। These are the मेल में जो बॉयज के चेंजेस, मुस्टैचेस, बियर्ड वगैरह होते हैं। कि बॉयज के जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में फीमेल को भी जानना जरूरी है। जैसे फीमेल के एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन
के बारे में जानना बॉयज को जरूरी है, उसी तरह से फीमेल को ऐसा जानना जरूरी है कि बॉयज के जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स रहेंगे वो है पेनिस, स्क्रोटम। स्क्रोटम हम लोग कंपेयर कर सकते हैं फीमेल के ओवरीज के साथ, एंड बॉयज में यूरिन पास करने का जो है रास्ता वो पेनिस से है, उसी तरह से सेक्सुअल इंटरकोर्स का सेम ऑर्गन है, दैट इज द पेनिस। और उनके जो अंडे यानी कि शुक्राणु जो बनते हैं, स्पर्म्स, दैट ये टेस्टिकल्स में बनते हैं। तो दिस आर द मेल ऑर्गन्स। उसमें जो पेनिस जो होता है वो यूजुअली छोटा होता है, इट हैज ए थोड़ा सा उसमें स्थितिस्थापक, वो इट कैन चेंज द साइज एंड शेप व्हेन सेक्सुअल एराउजल जो होता है, कहीं कोई ड्रीम देखेंगे या कोई मूवी देखेंगे ऐसा, तो दैट इज फ्रॉम द ब्रेन लेवल, एक्साइटमेंट होता है तभी उसका थोड़ा टाइटनेस आता है, फॉर्मनेस आता है और उसका साइज थोड़ा बढ़ता है। और कुदरत ने ऐसा रखा है कि देखो वजाइना का जो साइज है मैच्योर फीमेल की तो 8 सेंटीमीटर जितना है, तो पेनिस का भी वही साइज, जब इरेक्टेड जो पेनिस होता है उसका साइज ऑलमोस्ट उतना ही होता है फॉर द सेक्सुअल एक्ट टू हैपन। नाउ what is white discharge? This is very important because there are a lot of taboos in our mind. Usually female को ही white discharge होता है ऐसा मानते हैं। फिर दूसरा ऐसा है कि लड़की को अगर सफेद पानी गिर रहा है तो उसको वीकनेस आ जाएगी, या फिर उसके लिए माँ बाप बहुत वरीड रहते हैं। तो डिस्चार्ज ऑफ ए वाइट स्टिकी वाटरी फ्लूइड through vagina after menstruation or around the time of ovulation, that is 14th day of period, is very normal. But कभी कभी क्या होता है, वो डिस्चार्ज येलोइश थिक डिस्चार्ज होता है या थिक कर्ड लाइक डिस्चार्ज होता है, there is a irritation the pubic and perineal area, खुजली होता है, जलन होता है, पेन होता है, स्मेल आती है। तो these are the things where you have to contact doctor because it can be an infection. Now what about boys? Yes, boys do have normal discharge, तो उनके जो फोर स्किन के पीछे थोड़ा थिक वाइट डिस्चार्ज इकट्ठा होता है डेली फोर स्किन के नीचे, या फिर सुबह जब आप लोग उठोगे तभी यूरिन के साथ थोड़ा वाइट डिस्चार्ज पास होता है। तो दिस इज अ नॉर्मल थिंग, इट इज ए वहां के ग्लैंड्स के सब कलेक्शन होते हैं डिस्चार्ज के, तो उसको स्मैग्मा बोलते हैं कि जो ये कलेक्टेड डिस्चार्ज निकलता है बॉयज में। तो दोनों के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, टू अवॉइड इन्फेक्शन यू हैव टू मेंटेन द हाइजीन, इट इज मस्ट। आपका जो जेनाइटल ऑर्गन्स है उसको अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए डेली। थोड़ा टाइमली, थोड़ा टाइम हो जाए तो प्यूबिक हेयर को रिमूव करना चाहिए। प्राइवेट पार्ट्स को यूरिनेशन के बाद में एक्चुअली वॉश करना चाहिए। समटाइम्स व्हाट हैपन, आप लोग प्राइवेट पार्ट साफ कर लेते हैं बट उसको ड्राई नहीं कर पाते हो, तो इट विल बिकम वेट, और वेट जो रहेंगे टिश्यू तो वहां पे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। एंड ऑलवेज प्रीफर कॉटन गारमेंट्स। एंड जब भी फीमेल्स जो है, बच्चियां जो है वो पीरियड्स में होते हैं तो दे हैव टू use the sanitary napkins better, don't use clothes, and we have to change it 6 hours early at least, right? Now some questions are there कि attraction towards the opposite gender. अभी तो आप लोग वही दौर से पास हो रहे हो, this is very normal, you also know that this is normal, but see अभी opposite gender के लिए जो अपना attraction हो रहा है that is from our mind, hypothalamus में से सब हो रहा है, तो उसको एक तरह से एक्सेप्ट करेंगे। और आज हम लोग जो जानने के लिए बैठे हैं वो यही बातें करने के लिए, खुल के यही बातें करने के लिए बैठे हैं। तो ऐसी कोई मूवी देख ली या कोई गर्ल्स को देख लिया तो अपने को सेक्स करने की इच्छा होना, ये बेसिक है, नॉर्मल है। आपको ऑपोजिट जेंडर के साथ फ्रेंडशिप करना भी अच्छा लगेगा, बट यहाँ पे मैं इतना बोलूंगी
कि restrict this relation to friendship only, because you still require some more time to be mentally strong enough to take major decision of the life. And एक बात और भी है, देखो आप लोग तो अभी वोटिंग कर रहे हो, तो यू आर चूजिंग योर जो अपने लीडर है उसको चूज कर रहे हो, and this is after 18 years. Your mother, your parents, or nobody can tell you whether to go for sex or not. Sexually active होना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसके साथ सेक्स करना आपके ऊपर डिपेंड करता है. You will decide whether to do it or not, when to do it and where to. You decide whether you are fit for it mentally, physically or not. And if we think what is exactly sexual act जो होता है, तो what is happening inside our body? It starts, the signal starts from the brain level. Hypothalamus से gonadotropin releasing hormones आते हैं that will act on posterior pituitary, and ये सब जो brain में से जो start हो रहा है, that will go to our up till our external genital organs. And usually जो हम लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलते हैं, जो सेक्स एग्जैक्टली सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसको बोलते हैं, मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, तो ये नेचुरल अट्रैक्शन जो है ब्रेन लेवल से स्टार्ट हुआ, वाजो कंस्ट्रक्शन होगा, वो होने के कारण से देयर विल बी फीलिंग ऑफ इरेक्शन इन द पेनिस इन द बॉयज, एंड गर्ल्स को थोड़ा क्लिटोरिस में ऐसा लगेगा. क्लिटोरिस इज अ वेरी स्मॉल ऑर्गन. It can be compared with the penis in the male, right? तो उसमें थोड़ा एक तनाव जैसा होगा, कुछ अलग टाइप की गुदगुदी होगी, that is unexplainable. तो that is due to the changes. हार्मोन आए, एक्साइटमेंट हुआ, एंड थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल स्टार्ट होता है. फीमेल में नीचे के पार्ट में थोड़ा कुछ अजीब सा फीलिंग होगा, खून दौड़ गया है ऐसा फीलिंग होगा. सिंपैथेटिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाती है. तो यूजुअली हम लोग बात करते हैं कि वो मेरे सामने ऐसे देख रहा था, मेरी तो धड़कन ही चूक गई, ऐसा कुछ बोलते हैं. या फिर कोई बोलता है कि उसको देख के मेरे दिल की घंटी बज गई. तो दैट इज हार्ट बीट्स फास्टर. एंड मेल में क्या होता है कि ये सब हुआ, उसके बाद में देयर विल बी ए सीमेन आया, और यूरेथ्रल एरिया में, पेनिस में जो अंदर यूरेथ्रा होती है उसमें सीमेन भर जाता है. इट इज ए इंजेक्टेड इन द यूरेथ्रा, एंड देन इजैक्यूलेशन, मतलब जो स्पर्म अंदर सेन जो है वो एकदम फोर्स से बाहर निकलते हैं एंड फीमेल के वजाइना में लोड होते हैं. तो दिस वाज समथिंग अबाउट very genuine facts about the sexual intercourse. Now see, the subject is very interesting at your age, and अभी मतलब काफी लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, काफी लोग अभी करने वाले हैं बाद में एक्सपीरियंसेस. बट वेरी इंपॉर्टेंट one thing I will tell you, that is unwanted pregnancy. See, I will give you one example. If you are 30 years of age, you are just married and you are not planning for the pregnancy, but unfortunately, after unprotected intercourse, your wife conceives. Then what will they do? Hey, chalo jane do, we will celebrate, we will accept the baby, right? If you are 25, 26 years and you are unmarried, and then you have unprotected intercourse and she conceives, then also you can go for a proper way of abortion. You can go and get rid of that child. You can go and terminate the baby. Though it has consequences, I will tell you what consequences, but that can be done. But if you are 18 or 19 years in very first year, and if unprotected intercourse happens and pregnancy happens, then what will you do? So at this time क्या बोलते हैं, लड़का भाग गया? नहीं, लड़का भागा नहीं है. लड़का, he doesn't know what to do. Even she doesn't know what to do. And this is the time where वो लोग कुछ भी गलत एक डिसीजन ले सकते हैं कि कहीं भी जाके they will eat some medicines which is not right, or they may not go through the right channels, and they may go some quacks and some. So this is very dangerous to the life.
क्योंकि sometimes even the abortion can lead to infections, perforation of the uterus, intestinal injuries. That can happen. That can happen. And sometimes it may happen that she may become infertile for whole of her remaining life. So this is dangerous. And till you should, if at all it happens due to some or another reason, then medical termination of the pregnancy is safe for as early as possible. It should be terminated before 2 months. Up to 3 months, still it is okay. 20 weeks, after 20 weeks, it's not allowed. You have to deliver a child then. Or so it's better to prevent conception rather than later going for abortion. Oh, nutrition. Now, from the very interesting topic, everybody will tell, no, we don't want this advice, and no. We love our pizzas and pastas and wrap. Abhi wrap bhi nikla hai kuch. Even my son is very fond of wrap and everything. So, good nutrition is really, really very much needed. For your growth, for your genital organs growth, for sperms is a lot of role to your for your content. So say yes to the healthy diet. Say no to the unhealthy diet. And if I talk about obesity, आपके आजू बाजू वाले बच्चों को देखना, I don't know आपके ठाकुर कॉलेज में क्या हाल है. I think मराठी थोड़ा जो रहते हैं वो लोग fit रहते हैं, they do exercises and all. But I have seen a lot of colleges. I visit lot of schools also. The obesity is increasing day by day. They have tires on their stomach, abdomen. So it's not good for your future. So reduce your carbohydrate intake, and you have to take some people, कोई girls होते हैं वो कुछ zero figure बनाने के लिए वो they stop eating. So that is also not good. You have to take 6 meals, 3 main meal and 3 snacks. And calories, for girls it is 1500 to 1600, and for boys it is 1800 to 2000 calories. And क्या होता है सुबह, एक तो नींद नहीं खुलती अपनी. अगर नींद भूल से खुल गई तो नहाने का टाइम बचता नहीं, तो खाने का टाइम नहीं बचेगा. एंड वी रश टू द कॉलेज एंड दौड़ रहे होते हैं. एंड जब कैंटीन में जाते हैं तब तो फिर हो गया कल्याण. वहां पे तो अपने लिए इतने सारे चीज होते हैं कि जो हम अनहेल्दी खाना चूज करने से ही रहे. So take care, boys, girls, take care. Balanced diet, you all know. Anemia. Anemia is a hemoglobin जब कम होता है. You should have your hemoglobin 12. At least 12. अगर आपके hemoglobin नहीं है 12 के आसपास, तो पता है क्या होगा? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी. सो आपको टायर्डनेस लगेगा, आप थक जाओगे, आप काम नहीं कर पाओगे, आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, आपको याद नहीं रहेगा. व्हेन यू आर आ रहा है बट योर हीमोग्लोबिन इज डाउन. सो टेक केयर. प्रॉपर फूड आपको लेना है, प्रॉपर चूज करना है. इफ योर हीमोग्लोबिन इज लेस देन 9, then at least you should start iron tablets. Keep watch on your diet. Keep watch. Osteoporosis. So it is a disease of the old people. So आपको लगेगा कि मैंने यहाँ पे ये स्लाइड क्यों डाली है, but you just think about it. आपके साथ में नाना नानी दादा दादी रहते होंगे, तो नानी अगर नहाने गई और वो गिर गई, 100% she will have fracture. और आप नहाने गए और गिरे तो नल टूट जाएगा. That's the basic difference between the calcium level what we have in your bone. So keep watch on your diet
एंड मेरे को आपको इतना ही बोलना है कि व्हाट इज बैलेंस डाइट, कितना कार्बो कितना प्रोटीन, ऐसा नहीं। मेरे को एक ही बात बोलना है कि यू शुड नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जंक फूड, स्ट्रीट फूड एंड फास्ट फूड। फास्ट फूड इज अ फूड विच इज प्रिपेयर्ड फास्ट। जंक फूड, उसका नाम जंक है, इट इज अ टॉक्सिक फूड, इट इज हार्मफुल फूड फॉर आवर बॉडी। उसमें जंक फूड में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे ऑयल्स है, सॉल्ट्स है, शुगर है, रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड फ्लोर्स है, विच इज रियली बैड फॉर आवर हेल्थ, दैट इज कॉल्ड एज ए जंक फूड। एंड स्ट्रीट फूड, सी गोलगप्पे हम खाते हैं, कभी हम लोग भाजी, पाव भाजी खाते हैं, कभी हम लोग डोसा और वो सब स्ट्रीट में जाके लारी पे खाते हैं। दैट इज नॉट ऑलवेज अनहेल्दी, इट कैन बी हेल्दी, सो यू कैन हैव इट, बस खाली हाइजेनिकली प्रिपेयर हुआ होना चाहिए। तो दिस इज इट। एंड वन मोर थिंग आई वुड, कि जब आप पैकेट लेते हो, कोई चिप्स का ले रहे हो, कोई नेचोस का, जो भी आप ले रहे हो, डोनट्स, कुछ भी, मतलब आप पैक फूड ले रहे हो, तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि दिस आर द न्यूट्रिशनल फैक्ट। उसको पढ़ना हमें आना चाहिए। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट। कभी कभी वो लोग लिखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल फ्री, बट दे आर एडिंग समथिंग एज, इंस्टेड ऑफ दैट मूंगफली का ऑयल की जगह पे कुछ और डाला, दैट इज मोर डेंजरस फॉर अवर हेल्थ। सो बी स्मार्ट टू चूज द फूड। कभी वो लोग मल्टीग्रेन आटा लिखते हैं, बाद में कहीं छोटे से एकदम छोटे लिख देंगे राइटिंग्स में, कॉर्नर में कहीं पे, कि भाई इसमें 5 kg में 5 ग्राम ये डाला है। तो डोंट मिस वो लोग मिसगाइड करते हैं अपने को। तो देन वी हैव टू चूज अवर फूड वेरी स्मार्टली। एक्सरसाइज, यस, एक्सरसाइज तो आपको करना ही है। खेलो ना, व्हाई डू एक्सरसाइज, खेलो। अभी तो कोरोना भी गया है ऑलमोस्ट, सो डू डांसिंग, फुटबॉल प्ले करो, या फिर स्विमिंग, जॉगिंग, सब कुछ कर सकते हैं। मैराथन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। कभी भी कॉलेज में जाना, डोंट यूज योर एलिवेटर्स, यूज द स्टेयरकेस। इट्स you have to do exercises, you have to be physically active, and please don't hog in front of TV. अगर आप नहीं कर रहे हो, आपके घर में कोई कर रहा है, तो उनको भी बोलिए, भले एल्डर्स हो तो भी। दिस इज द वर्स्ट थिंग वी कैन डू, क्योंकि टीवी के सामने बैठ के हमें कभी नहीं पता रहेगा कि हम कितना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। Yes, this is a dream of ours, and for that, just look into your healthy lifestyles. And again, there are some questions. Why acne? Yes, ये तो बहुत ही जानलेवा लगता है आप लोगों को एज में। एक्ने जो होता है, खील बोलते हैं ना उसको, खील, गुजराती में खील बोलते हैं, एक्नी। तो ये जो एक्ने होते हैं वो एंड्रोजन्स के वजह से, जो मेल हार्मोन्स है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑयली स्किन एंड जो अपने हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन होता है। तो इसीलिए मेल्स में बहुत ज्यादा, जब भी ग्रोथ उनका होने लगता है, प्यूबर्टी के पार करते हैं, तो उनको एक्ने होने लगते हैं। माथे में खोड़ा होता है, रूसी बोलते हैं ना, रूसी, वो होने लगती है। फीमेल्स में कभी कभार पॉलिसिस्टिक ओवरी होता है, उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो थोड़े मेल हार्मोन हावी हो जाते हैं, तो उनको भी हेयर ग्रोथ होने लगता है, एक्ने होने लगता है। तो ये जो चीज है उसको बहुत ही इजीली, मतलब विदाउट मेडिकेशन, अपने लाइफस्टाइल से इसको हम लोग कम कर सकते हैं। दूसरे कोई ऐसे प्रॉब्लम है जैसे कि पेनफुल पीरियड्स रहता है, वो नॉर्मली रहता है थोड़ा पेन। आपको बॉयज को भी जानना जरूरी है कि जब गर्ल्स को पीरियड्स होते हैं तो उनको थोड़ा एब्डोमिनल पेन वगैरह रहता है, पाँव में दर्द रहता है, कभी कभार थोड़ा ब्रेस्ट टेंडरनेस रहता है, कभी कभी उनको फूड की क्रेविंग हो जाती है, मूड स्विंग्स आते हैं, कभी आपको ऐसे ही झाड़ देगी कि क्या कर रहा है, मैं कब की बुला रही हूँ, आ नहीं रहा है, चाबी दे दे, ये वो करके। तो these things again can be tackled with healthy lifestyle. So now going to the very important aspect, that is hygiene. Yes, we will be hygiene. It is must. कोरोना ने हम लोगों को हाइजीन तो शायद सिखा ही दिया है। बात पता नहीं बच्चों आप लोग लेते हो कि नहीं, पर I have seen lot of students, they are not interested in taking bath. Then wash your hands before eating. It is must. Wash your hands
with soap after defecation. लेट्रिन में जाके आते हो, वॉश करना है. We know that. फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ, वॉश योर प्राइवेट पार्ट्स विथ वाटर आफ्टर यूरिनेशन. अगर जनरल टॉयलेट में हो, कॉलेज में हो, इट इज नॉट पॉसिबल, कीप टिश्यूज विथ यू, so you can clean the private parts. Keep your inner garments clean and use cotton garments. And if जो menstruating females है, उनको napkins every 6 hours में change करने हैं. Now females के लिए ये बहुत important है कि cleaning private part from side to side or front to back, not from back to front. बिकॉज बैक में, एनल रीजन में, लैट्रिन की जगह में थोड़े अलग बैक्टीरिया रहते हैं, और वो अगर आगे आ जाए तो दे आर स्टबर्न बैक्टीरिया, ई कोलाई नाम के, तो वो फिर बाद में यूरिन इन्फेक्शन, वजाइनाइटिस क्रिएट करते हैं. तो ये याद रखना, गर्ल्स की प्राइवेट पार्ट साइड टू साइड या फ्रंट टू बैक क्लीन करना है. देन specific cleaning for NC-DAYS. Yes, you have to clean your private parts very properly with the warm water, and sometimes maybe there are some hygiene wash which contains the thing कि आपका vaginal जो pH होता है, it is acidic and it has to be maintained. अगर वो acidic रहेंगे तो बैक्टीरिया पनपेंगे नहीं, खराब जो बैक्टीरिया होते हैं वो. तो उसके लिए hygiene wash भी आता है. hygiene wash if you are using V wash या she wash या ऐसा कुछ भी, तो that is to be used 2 days में एक बार करना चाहिए, it is enough. Boys के क्लीनिंग ऑफ प्राइवेट पार्ट इज वेरी नेसेसरी. बॉयज का जो फोर स्किन रहता है, फोर स्किन चढ़ा के, फोर स्किन के पीछे जो व्हाइट डिस्चार्ज है, दैट हैज टू बी क्लीन्ड एवरी डे प्रॉपरली, अदरवाइज वो वहां पे रहेगा तो वो इन्फेक्शन करेगा. एंड खाली जस्ट वॉश इट विद द वार्म वाटर, इट इज इनफ, इट इज इनफ. So, and then lastly, I will tell you, providing sanitary napkins to girls is a responsibility of community. Not only the girls will look after that, it should be taken care by all. अभी स्कूल में या वहाँ पे कॉलेज में भी अगर है सैनिटरी नैपकिन्स का वेंडिंग मशीन वगैरह, तो इवन उस प्रोजेक्ट में बॉयज को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए कि दिस इज मस्ट. एंड disposal of the sanitary napkins. देखो इतने सारे, अपना जो population है उसमें half population girls का है, and they are using sanitary napkins. तो disposal का एक project कर लो आप लोग कि कैसे dispose किया जाना चाहिए, कैसे. This is very very important. And these are some sexually transmitted diseases and some diseases which happens due to wetness in private areas. तो कॉन्डाइलोमेटा वो जो है वो वायरल इन्फेक्शन है, HPV से होता है. जेनाइटल हर्पीस, उसमें बहुत सारे अल्सरेशन, एंड दिस इज अ वेरी पेनफुल कंडीशन. एंड वो जब भी ये इन्फेक्शन अगर है और सेक्स हुआ तो वो अपने पार्टनर को गिफ्ट में मिलने वाला है इन्फेक्शन. उसी तरह से मेल में देखा जाता है वही HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरल डिसीजेस, कॉन्डाइलोमेटा एंड सिफिलिस, गोनोरिया, इतना सारा जो डिसीज है, थोड़ा सा केयर नहीं रखने की वजह से हमारे पास आएंगे, हमारे में से एड्स जाएगा अपने पार्टनर के पास, और इट कैन गो अप टू अवर प्रोजेनी. तो these are the sexually transmitted diseases: protozoal infection, gonorrhea, syphilis, lot of diseases due to which are sexually transmitted. And for this, prevention is really better than cure. And we are discussing on the occasion of the World AIDS Day कि AIDS जो है वो sexually transmit होता है. दोनों पार्टनर में से अगर फीमेल इज ऑल्सो HIV पॉजिटिव तो उसके बच्चे को जन्म के टाइम पे HIV पॉजिटिव आ सकता है. बट देयर आर सम ट्रीटमेंट कि उसके बच्चे को HIV पॉजिटिव ना आए, तो ये आपका जानना जरूरी है. दूसरी बात यह है कि ब्लड अगर चढ़ गया कोई इन्फेक्टेड पर्सन का तो फिर अपने को हो सकता है HIV. एंड इंजेक्शन जो लगते हैं तो HIV वाले पेशेंट का इंजेक्शन अगर लग गया तो भी HIV हो सकता है. तो प्रिवेंशन एंड मेकिंग राइट चॉइस इज द ओनली वे टू फाइट डिसीजेस. एंड सी फ्रेंड्स staying in same house, playing together,
studying in school, ऑफिस, फैक्ट्री, हगिंग, ईटिंग टुगेदर, हैंडशेकिंग, ये जो चीजें हैं डे टू डे की, सेम टॉयलेट यूज करते हैं, सेम क्लॉथ यूज करते हैं, फिर स्विमिंग पूल सेम यूज कर लिया, मॉस्किटो बाइट, ये सब चीजों से HIV नहीं फैलता है, बराबर है? तो ये हमें जानना जरूरी है। दिस is the abnormal babies. Sometimes abnormal babies आते हैं इन्फेक्शन की वजह से, रूबेला इन्फेक्शन हो या फिर कभी साइटोमेगालो इन्फेक्शन हो, तो these are the infection which carry to the baby and मदर की ओर से बेबी को जाता है एंड बेबी एबनॉर्मल आ सकता है। तो for something we have vaccine, for something we have vaccine. Like रूबेला वैक्सीनेशन इज देयर, रूबेला का वैक्सीन लिया है तो बेबी को रूबेला इन्फेक्शन नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि गर्ल्स को मिसकैरेजेस होते रहते हैं अगर रूबेला इन्फेक्शन हो तो रूबेला वैक्सीन आप सबको मिल गया है, वो छोटे होते हैं तभी मिल जाता है। वन इज वेरिसेला वैक्सीन, दैट इज चिकन पॉक्स वैक्सीन, दैट इज ऑल्सो, आप अगर अपना वो कार्ड निकाल के देखेंगे वैक्सीनेशन का तो उसमें मिल जाएगा। बट द थर्ड वन इज सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, दैट इज बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जो होता है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर वायरल इन्फेक्शन से होता है, HPV नाम का ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है उससे होता है। एंड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन बॉयज में भी होता है, बॉयज में वो पेनिस के कैंसर, पेनाइल कैंसर का रीजन बन जाता है। अभी अपने यहाँ गर्ल्स के लिए इंजेक्शन चालू हुए हैं वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स। अपना एम क्या है गर्ल्स को वैक्सीनेट करने का कि उनको हाई ग्रेड मतलब बहुत एडवांस कैंसर ना हो और वो डिटेक्शन भी जल्दी हो और ना हो उनको। वी वांट सर्वाइकल कैंसर टू बी 0 बाय, हम लोग फॉक्सी के मेंबर्स हैं, इंटरनेशनल जो अपना इंडियन गायनेकोलॉजिस्ट का एक पूरा फॉक्सी नाम का एक यूनियन है, तो उसका एक एम है कि इंडिया को 2030 तक we want to make 0 cervical cancer rates and तो वैक्सीनेशन सर्वाइकल कैंसर का शायद आपने लिया है या नहीं वो रह सकता है, क्योंकि वो चाइल्डहुड में शायद नहीं दिया रहता है एंड थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके डॉक्टर चेंज हो जाते हैं। छोटे होते हैं अपन तो अपन पीडियाट्रिशियन को दिखाते हैं और बाद में फिर बड़े हो जाते हैं तो वो वैक्सीनेशन रह गया हो किसी गर्ल्स का तो उनको लेना चाहिए। उसका मेन एज ग्रुप है 15 साल से लेके बिफोर मैरिज यू हैव टू टेक द सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन। और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि इतना फेमस अपने इंडिया में नहीं है, बट बॉयज को भी वो एक वैक्सीन देना है क्योंकि उनको भी HPV इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन वो इन्फेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में होता है। तो दिस इज द थिंग कि भाई आप लोग बैठ के रघुपति राघव राजा राम गाने के लिए बैठो एंड मीरा के भजन गाने के लिए बैठो। स्पिरिचुअल टू बिकम स्पिरिचुअल, हम एक धर्म को पालते हैं राइट, हम जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे धर्म रहते हैं तो वी आर बोर्न इन दैट फैमिली। तो ये जो धर्म है दैट इज अ लेडर and it should guide us to the spirituality. The dharam which is not guiding us to spirituality, that is not actually a dharam. We will be मुझे लगता है साइड ट्रैक हो जाएगा, but see morality, justice, truthfulness, love, sacrifice for common good, peace, discipline, these are the things. और मुझे लगता है कि ये हमें आपके पास से चाहिए बिकॉज अभी आप बिगड़े नहीं हो और जो बड़े हैं वो शायद थोड़े बिगड़े हैं। तो आई वांट कि नई जो ये पीढ़ी है वो स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़े, से नो टू स्ट्रेस। वो भी मुझे लगता है कि आप लोग ना कूल हो बच्चे, मेरा बच्चा मुझे बोलता है कि मम्मा कूल कूल चिल चिल ऐसा बोलता है, तो दैट इज द थिंग। यू कैन डू मेडिटेशन एक्सरसाइजेस एंड say no to stress. Yes, I
I just cannot forget this slide. Sexual abuse. Someone touches your private part in sexual way. Your body is private. You can ask them to stop, to stop, to stop. Someone makes you touch him or her. Stop. Someone takes picture of your private part. No, no. This is must. This is not. मुझे लगता है कि ये adolescent का subject है, but no. It is a subject of society and of course yours also. Learn to say no. Learn to say no. And situations ऐसी आएगी आपके लाइफ में जब आपको decision making करना होगा और आपके हार्ट में घंटी बजेगी. You want to go for sex. You want to go for something. You want to go somewhere. But never say yes when you actually want to say no. You know कि drugs नहीं लेना है मुझे, alcohol नहीं लेना है, smoke नहीं करना है, but बाजू वाला कर रहा है, वो बोल रहा है कुछ नहीं होगा यार, तो फिर don't listen to your heart, you listen to your mind. So, and you should differentiate the good and bad touch also, and politely refuse कि no, this is not done. And suicidal tendency, boys, girls, आप अगर फेल हो रहे हो तो इट इज नॉट फॉर द लाइफ टाइम. नो फेलियर इज फॉर लाइफ टाइम. आपको अगर कुछ नहीं मिला, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पता नहीं वो शाहरुख खान कोई जेल में रहता है पूरा पारों के पीछे. आई डोंट अग्री विद दैट. लाइफ इज वेरी यूजफुल. सो डोंट, करना नहीं है. we will work harder than this, and then success will be ours. So it is a success and failures are part of life. Accept it and उसके लाइफ के गोल बनाओ. आप लोग तो हमसे ज्यादा ऐसे गोल बनाते हो कि आप सोचते हो पहले कि मुझे इंजीनियर बनना है, बाद में फिर आप उसके ऊपर वर्क करते हो. So don't get distracted. Confidence and hard work is the best medicine to kill the disease called failure. It will make you successful person. So dream. Transform into thoughts, and thought result in action. So this is what APJ Abdul Kalam wrote about it. And smoking, drinking, drugs are not the answer to anything. आप कुछ पढ़ रहे हो और पढ़ाई नहीं हो रही है, या कुछ कोई गर्लफ्रेंड चली गई, and if you think you will get something good from smoking, drinking and drugs, no. उसमें तो आपका फिर अंत ही होना है, ऐसा बोल सकते हैं. Emotional changes will happen. It is a transition from childhood to adulthood. Attraction, everything. This is all normal, natural. Just accept it. And success is when your signature changes to autograph. Thank you, students. I wish you a very गुड लक. एंड स्टिल थोड़े दिन के लिए आप लोग मास्क वगैरह पहनना, आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग हमारा फ्यूचर है. थैंक यू वेरी मच. आई एम एंडिंग एंड I would like to have lot of questions actually. Thank you, ma'am. Thank you for your wonderful insight. Now I would like to hand over this session to Ms. Siddhi Jadhav to conduct the Q&A session. Yes, thank you, ma'am. First of all, it was a great session. So now we can start the question answer session, wherein if you guys have any doubt regarding this webinar, or if you want to ask anything to ma'am, feel free to ask. You can post all your doubts in the chat box. There is a question here by Ritesh. Any other question? Yes, ma'am, we do have one question. What is the responsibilities do parents have in providing qualified sex education? Like, parents generally don't talk with their children about this topic. So what responsibilities do parents also have along with the child? नहीं, वो एकदम खुलापन होना चाहिए. It should be very transparent. जितना ट्रांसपेरेंसी होगा, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दोनों साथ में बैठ के सुने. एक ऐसा माहौल था बेटा कि मैं मेरी मम्मी के साथ बैठी हूँ एंड आई जस्ट कैन नॉट वॉच द एडल्ट मूवी. अभी भी ऐसा मेरे में एक बैरियर है, बट माई चिल्ड्रन कैन सी वॉच द मूवी विथ मी.
तो दैट इज द डिफरेंस नाउ। आपको वो दिस इज अभी क्या है, फिंगर टिप्स पे आपने सब कुछ देखा है, पर पेरेंट्स उसको छुपा के बैठेंगे, उससे कुछ भी नहीं होगा। तो देयर शुड बी ए रोल ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स एंड even your role. It should be very transparent. Also, ma'am, there is one question like how to give the mental support to victim, like who is a victim of sexual abuse or like sexual harassment. So how we can give them mental support and like, so how we Yeah, can do it? sexual harassment is the this is the worst thing to happen with females or male, whatever the gender is. बट इट उसमें क्या होता है कि अपना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है पूरा का पूरा, बिकॉज एक अपने अस्तित्व पे वो ये होता है ना कि टू भावनात्मक भी होता है एंड फिजिकल भी, इमोशनल एंड फिजिकल बोथ थी। सो उनको सपोर्ट के लेवल्स ऑफ सपोर्ट शुड बी देयर, कि उनको एक तो सबसे पहले कि उनका एब्यूज हुआ है तो वो चीज खराब है और उनकी गलती है, वो उनको कभी नहीं लगना चाहिए। एंड उनको सपोर्ट एवरीवेयर, फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड स्कूल एंड सोसाइटी, सभी और से मिलना चाहिए। Also, ma'am, like do this sex education help all the teenagers to feel comfortable with their bodies? Like most of us are like insecure about how we look or about our appearance as well. So does it help in this way also? 100%. It should be a compulsory subject. And being a FOXY member, I am a FOXY member. हमारे गायनेकोलॉजिस्ट का एक पूरा ये है कि एवरी स्कूल हम लोग वहां जाके एजुकेट करते हैं उनको, और उसके रहते बच्चों को बहुत कंफर्ट फील होता है, क्योंकि उनको वो किसको बताएंगे, मम्मी पापा से कभी कभी थोड़े शर्माते हैं वो लोग बताने में, एंड फ्रेंड्स को बताते हैं तो फ्रेंड्स का हाल सेम होता है अपने जैसा ही, कि उसको भी इतना मालूम नहीं है। तो इट इज मस्ट, एक जन ऐसा रखो आप लोग अपनी लाइफ में भी, कि उसको आप पूरा का पूरा बता सकते हो, पूरा ट्रांसपेरेंटली कि ऐसा ऐसा हो गया है मेरे साथ करके। इफ एट ऑल इट इज सेक्सुअली आप एक्टिव भी हो, घर में नहीं बोल रहे हो कोई किसी को, तो that person should be wise to guide you. It is compulsory. It should be compulsory. Yes, ma'am. And also there's a question from Nandini said, so like does cervical cancer vaccine, which you mentioned in the PPT as well, does it have any side effect, or it can cause blood clots, or like where we can get it, like she's asking about it. Cervical cancer vaccine is available everywhere with all pediatricians also and gynecologists also. It has nothing to do with blood clots and all. And उसके 3 doses होते हैं, first dose after 1 month, second dose, and after 5 months, third dose. So 3 doses in 6 months. उसका कॉस्ट कुछ लगभग 2000 के आसपास का होता है, बट अभी तक वो गवर्नमेंट ने इंक्लूड नहीं किया है, तो दैट यू हैव टू ऑलवेज मतलब पेएबल होता है, बिकॉज यू हैव टू गो टू द गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन। Yeah, ma'am. So the next question is healthy. Someone is asking about the healthy diet PPT slide. Like about nutrition and about being healthy and about exercising as well. So does it really affect, and how does it affect in a good way? हाँ, नहीं, वो does it really affect का आंसर ये है कि it really affects because it कितने सारे ऐसे हैं, मान लो PCOS हम लोग लेते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इट इज वेरी कॉमन, काफी गर्ल्स को पता होगा उसके बारे में कि भाई मुझे तो PCOS है, बट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम is present in 40% of the cases, but all 40% will not have any problem in menstruation also, in conceiving also, in long term also. तो healthy diet में आपका menstruation regular रहता है, आपके जो अंडे रहते हैं वो बहुत ही हेल्दी रहते हैं। हम लोग जो कपल कंसीव करना चाहते हैं उनको डाइट चार्ट लिख के देते हैं कि यू टेक दिस डाइट, इनफर्टिलिटी का प्रमाण कम हो जाता है, स्पर्म काउंट बढ़ जाते हैं, और स्पर्म काउंट यू वोंट बिलीव कि एक्सरसाइज से क्या फायदा है। स्पर्म एक बार हम लोग लैब में जाके, आप लोगों का कोई चांस मिले ना तो लैब में स्पर्म देख लेंगे, जिनके स्पर्म
स्ट्रेस रिलेटेड जिनका बिजनेस होता है, उनके जो स्पर्म है ना, वो बेचारे एकदम ऐसे लटक गए रहते हैं, ऐसे ऐसे हो जाते हैं। जब हम लोग उसको एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करवाते हैं, हेल्दी डाइट देते हैं, तो द स्पर्म बिकम वेरी फाइन, ऐसे ऐसे मूवमेंट करने लगते हैं। तो दैट वी हैव सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एक्सरसाइजेस, एंड हॉर्मोन्स का लेवल बदल जाता है, हैप्पी हॉर्मोन सीक्रेट होते हैं, तो इट इज very necessary. Also, ma'am, since you talked about PCOS right now, so here's one question, like how to overcome PCOD and is it a disease? See, PCOD itself is not a disease. देखो, हम जन्म से ही अंडे लेके जन्मते कि इतने अंडे हैं मेरे पास। तो PCOS पेशेंट के पास एक्चुअली दे आर ब्लेस्ड पीपल, जिसके पास बिल्कुल अंडे ही नहीं है। उससे ज्यादा हम लोग इनफर्टिलिटी, आई एम इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड IVF सेंटर में चलाती हूँ। तो मेरे पास जब PCOD का पेशेंट आता है इनफर्टिलिटी लेके, तो मुझे तसल्ली रहती है कि एटलीस्ट शी इज ए ब्लेस्ड वन, कि उसके पास अंडे हैं। और जिनके पास अंडे ही नहीं है, उनके लिए हमें फिर वो फील होता है कि अब क्या करें। तो PCOS मतलब हमारी ओवरीज में जो नॉर्मली 6-7 एग्स दिखते हैं, उसकी जगह पे वो दोनों ओवरी में मोर देन 15 एग्स नजर आते हैं, होते हैं। तो उनके अंडे ज्यादा होते हैं, इसलिए थोड़ा उनका ओव्यूलेशन इरेगुलर रहता है या फिर नहीं रहता है, थोड़ा कम MC आ सकता है। और उनके जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन्स, वो थोड़े हावी हो जाते हैं। तो मतलब उनके लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन थोड़े बढ़ जाते हैं, तो उनको यहाँ पे थोड़े हेयर ग्रोथ होने लगते हैं, कभी कभी एक्नी ज्यादा होने लगता है, कभी कभी ऐसे गले में डिस्कलरेशन, थोड़ा पिगमेंटेशन होने लगता है, उनका MC इरेगुलर होने लगता है, और कभी कभी इनफर्टिलिटी होने लगती है। तो दिस आर द अभी आपको दिखने वाला, एकदम रिसेंट मैंने बोला। पर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो उनको डायबिटीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। और उसके लिए हम लोग अगर लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, वेट मेंटेन रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे एंड डाइट प्रॉपर लेंगे, तो 70% पीपल, 70 will not require any kind of medication for PCOS. Okay, ma'am, there's this one last question, like do bad family relations have an impact on sexual behavior in adulthood? And also, do children really need to know about healthy relationships? Yes, of course, because कभी किसी के मम्मी डैडी का अगर डिवोर्स हुआ है, तो उनका अगर आप लोग बिहेवियर देखेंगे और मम्मी डैडी के रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, उनका रिलेशन देखें, बच्चे को ऐसा रहता है। अभी आप लोग अभी इतने बच्चे, मतलब यू आर नॉट दैट स्मॉल कि वो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँ। इसमें ऐसा रहता है कि अगर आपने अपने मम्मी डैडी का हेल्दी रिलेशनशिप देखा है, तो दैट विल अफेक्ट ए लॉट उनके पूरे, मतलब एक को ऐसा रहेगा कि मुझे शादी नहीं करनी है, बॉयज ऐसे होते हैं। पापा अगर ड्रिंक वगैरह करके आते हैं तो उनको ऐसा रहता है कि नहीं, बॉयज तो ऐसे ही होते हैं, लड़कियों तो ये करना पड़ता है। अगर वो रिलेशन स्पॉइल है तो उनको शादी के लिए एक जो रिस्पेक्ट रहना चाहिए, मैरिज इंस्टीट्यूट के लिए एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट रहना चाहिए हस्बैंड एंड वाइफ का, वो फ्यूचर में शायद कॉम्प्रोमाइज हो और फिर सेक्सुअल एक्ट पे भी उसका इफेक्ट आए, ऐसा बहुत ज्यादा पॉसिबल है। क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है उसमें इमोशनल टच नहीं हो, तो मतलब देखो प्राणी जो रहते हैं अपने आसपास, एनिमल किंगडम, उनमें भी वो नहीं है। तो फीमेल मतलब अपना जो ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल रिलेशंस एंड भावनात्मक अपना जो एकता है, वो ऑन मैरिज अपना इंडियन सिनेरियो में तो बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए हैं। Also, ma'am, there's this question asked by someone. Who is at more risk of becoming infected with an STI, men or women? Pardon, who is? Who is at more risk of becoming infected with an STI, men or women? And how can we get to know like one is infected or not? Yes, of course. This is a very good question. और मुझे लगता है I forgot to take this. जो सबसे ज्यादा important ये है कि हमें एकदम शुरुआत में नहीं पता चलता है कि whether this man is infected or whether this lady is infected or not.
तो इसीलिए जब आप लोग आपके स्टेटस पे सेक्सुअली एक्टिव होते हो, डिसाइड करते हो कि यस आई वांट टू गो फॉर अ सेक्स नाउ बिफोर मैरिज आल्सो, देन यू हैव टू यूज डबल प्रोटेक्शन. यू हैव टू टेक ए पिल. अगर फीमेल है तो मैं बोलूंगी कि आप बर्थ कंट्रोल पिल ले लो टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी. एंड बॉयज मतलब आपके पार्टनर को बोलो कि टू यूज द कॉन्डोम. सो डबल प्रोटेक्शन टू avoid the sexual I mean sexually transmitted diseases. Otherwise you will never know and you will stuck up with the HIV positive. जब आपको पॉजिटिव होगा तब आपको पता चलेगा कि the things are lost. Also, ma'am, there's a question like, what are the sanitation practices that should be strictly followed during sexual activity? Okay, sexual activity, if you consider it, अभी मैंने बोला वैसा कि if it is not, it is outside the marriage अगर है, तो सबसे पहले मैं ऐसा बोलूंगी कि it should be no to the outside sex should not be there, extramarital relations should not be there. अगर आपके लेवल पे आपके एज पे है तो मैं ऐसा बोलूंगी कि फ्रेंडशिप रखो, बहुत आराम से मतलब ये रखो, पर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए आप थोड़ा टाइम लो, थिंक अबाउट इट एंड देन ओनली गो फॉर इट. फिर दूसरा ये है कि क्या ध्यान रखना है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ शादी नहीं हुई है, मान लो एंगेजमेंट हो गया है, use condoms and protect yourself from the unwanted pregnancy and infection both. Now once you are in marriage, then आप ऐसा टेक केयर कर सकते हो कि आप विदाउट प्रोटेक्शन रिलेशन रखते हो तो आप दोनों को कोई इन्फेक्शन नहीं है. उसमें क्या होता है कि एकदम ट्रांसपेरेंसी रहती है बाद में, फिर यू नो एवरीथिंग अबाउट योर पार्टनर. सो देयर इट इज वेरी मच पॉसिबल कि पता चले कि उसको इन्फेक्शन है कि नहीं, उसको कोई कंप्लेन है कि नहीं. अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अगर हुआ है तो उसके लिए हाइजीन में यही है कि दोनों जने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें. जो अंडरवेयर का मैंने बताया था, वो पीएच मेंटेनेंस के बारे में मैंने बताया अभी अपने टॉक में, वो आपका डिस्चार्ज वगैरह जो होता है उसका प्रॉपर केयर. हेयर रिमूवर अगर करना है तो उसका प्रॉपर वे ऑफ, कभी किसी को वैक्सिंग जमता है, किसी को यूज ऑफ क्रीम जमता है, तो दैट इज वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है किसको क्या जमेगा वो, बट इट शुड बी डन प्रॉपरली. और सफाई बराबर अच्छे से करके अगर आपका नॉर्मल नेचुरल इंटरकोर्स जो वीकली हम लोग ऐसा मानते हैं कि एक हेल्दी कपल के बीच में ऑलमोस्ट 3 times a week इज ए नॉर्मल उनका जो एक सेक्सुअल इंटरकोर्स का रेट रहता है. बट उस टाइम पे आफ्टर रिलेशन ऑल्सो दे हैव टू सुबह अच्छे से सफाई कर लिया प्राइवेट पार्ट का. खाली ल्यूकवार्म वाटर इज ओके, बट वो बहुत जरूरी है क्योंकि जो सीमेन होता है ना, इंटरकोर्स होता है तभी जो बॉयज के सीमेन रहता है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है और फीमेल का वजाइना है वो एसिडिक होता है. तो आफ्टर इंटरकोर्स वजाइनल पीएच थोड़ा चेंज होता है, तो वो पीएच का मेंटेनेंस फिर बाद में अगर अच्छे से वॉशिंग वगैरह नहीं हुआ तो देन द पीएच विल, फिर इन्फेक्शन आता है, ईचिंग आ सकता है, ये सब आ सकता है. तो दिस आर द थिंग्स वी हैव टू follow while sexual activity. Yes, ma'am. Also, there's one question. Like, are there any prerequisites for taking that cervical cancer vaccine, and what kind of diet should we mention at that time, like when we take the vaccine? No, वैक्सीन और डाइट का डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं है. आप आराम से वैक्सीन कभी भी ले सकते हो, इवन आप मेंस्ट्रुएशन में हो तो भी ले सकते हो. कोई भी डाइट हो, कहीं जा रहे हो, ट्रैवलिंग है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है. बट मैंने बोला वैसा कि इट शुड बी टेकन आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, मतलब एक मीनार की आपका आ गया मेंस्ट्रुएशन, तब से लेके बिफोर योर मैरिज यू शुड टेक. अगर किसी ने नहीं लिया है और उसका मैरिज हो गया है तो भी वो लोग ले सकते हैं. 35 years तक तो ले ही लेना चाहिए. हम लोगों ने जब लिया था तब हम 40 years के थे तो भी हमने लिया था. पर प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा अनमेरिड गर्ल्स को मिलेगा बिकॉज वो एक्सपोज नहीं हुए हैं एचपीवी वायरस से. आफ्टर इंटरकोर्स वो लोग एक्सपोज होते हैं. तो दिस इज द थिंग. एंड वैक्सीन के 3 doses आते हैं, अगेन 1, फिर आफ्टर 1 month 2nd, एंड आफ्टर 5 months 3rd dose.
एंड वैक्सीनेटेड, हाँ वैक्सीनेशन के बाद में तुरंत प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी का प्लानिंग जिनका है उनको वैक्सीनेशन पूरा करके आफ्टर 2-3 months प्लान करना चाहिए प्रेगनेंसी। Yes, ma'am. One last question we'll take. There's a question like, what is contraceptive pills and what are its side effects? And what do you think about birth control and importance of contraception? अच्छा, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के हार्मोन्स से बने रहते हैं। ओनली प्रोजेस्टेरोन पिल्स आर अवेलेबल, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर अवेलेबल, डिफरेंट डिफरेंट उसका मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग प्रोजेस्टेरोन होते हैं, अलग अलग डोजेस होते हैं, एकदम लो डोज मिलते हैं, फिर थोड़ा हाई डोज पिल्स मिलते हैं। पर ये जो पिल्स है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बोथ होते हैं या फिर ओनली प्रोजेस्टेरोन होता है। जो हम लेते हैं उससे हमारा ओव्यूलेशन नहीं होता है, दैट्स द थिंग, कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाता है तो प्रेगनेंसी नहीं रुकता है। इसलिए ओसी पिल्स में सबसे ज्यादा गारंटी होती है कि बच्चा नहीं रुकेगा, 99.99%। और उसके साइड इफेक्ट देखने जाए तो उसके थोड़े से साइड इफेक्ट होते हैं बिकॉज थोड़ा हार्मोनल पिल्स होती है, बट आजकल इतने लो डोज में पिल्स निकली है कि जिसका साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर। Yes, ma'am. Thank you so much for providing all the information. It was a great session, and now I would like to hand over the session to Virat. just a minute. एक रितेश करके, रितेश गुप्ता ने पूछा था कि स्मोकिंग इन्फ्लुएंस करता है कि नहीं सेक्सुअल एक्ट को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम आंसरिंग कि स्मोकिंग अगर प्रेग्नेंट वुमन करती है तो उसको बच्चा IUGR यानी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन वाला आता है स्मोकिंग करने से। फिर बच्चा अंदर मर सकता है वोम में इतना ज्यादा इफ फीमेल स्मोक्स। थर्ड थिंग, स्मोकिंग करने से अपना फर्टिलिटी बहुत कम हो सकता है, स्पर्म काउंट लो हो सकता है। और दूसरा क्या पूछा था उसने, सेक्सुअल फंक्शन, यस इट मे हैम्पर। ज्यादा स्मोकर्स, चेन स्मोकर्स रहते हैं उनका सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हो सकता है। तो स्मोकिंग का बहुत ज्यादा इफेक्ट है, अल्कोहल का भी है। 10-10 पीढ़ियों तक अपने को मिलेगा। पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ते थे अल्कोहल का कि अल्कोहल लेने वाले के 4-4 पीढ़ी के बाद में, मतलब 4-4 जनरेशन के बाद में कुछ निकलेगा, उसके फेस पे कुछ ऐसे रहते हैं, आईज के कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल, yes, it affects our future generation also, sexual act, sexual function also. Yes, ma'am. Actually, one more question that I want to ask you that, ma'am, boys के लिए भी तो कुछ pills रहेंगी ना? मतलब प्रोसेस के लिए ऐसा कुछ है क्या? मतलब हो गए तो उनके लिए भी कुछ होगा तो आप बता सकते हैं क्या इसके बारे में? हाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव बॉयज के लिए जो पिल्स ऐसा अभी तक नहीं है जो कि एकदम फेमस हुआ हो। बॉयज के लिए कॉन्डोम यूज है अभी तक अपने यहाँ जो फेमस है वो। तो दो चीज है बॉयज के लिए, वन इज कॉन्डोम एंड सेकेंड इज जो परमानेंट स्टरिलाइजेशन बोलते हैं, तो वाजेक्टोमी। वाजेक्टोमी करने के बाद वो फिर फादर नहीं बन सकते, क्योंकि उसमें हम लोग वाज डेफरेंस जहां से स्पर्म आते हैं बाहर उसको ही बंद कर देते हैं, ऑक्लूड कर देते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज कॉन्डोम्स। ओके मैम, देयर इज वन क्वेश्चन है। तो मैम उसके लिए पेरेंट्स का परमिशन एंड ऑल पूछ सकते हैं क्या? इफ इज नॉट 18, इफ द पर्सन इज नॉट 18 एंड उसको HIV टेस्ट हाँ, कहा जाए? HIV test, if you are not, this is a good question because HIV test हम लोग किसी को पूछे बिना उनका HIV test नहीं कर सकते। We have to take permission of that person कि भाई आपका एक HIV test करना है, and the person is more than 18, then उसका मतलब आराम से कर सकते हैं। पर मान लो आप less than 18 हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको आप अपने फादर, आप यू कैन गिव ए कंसेंट टू डू HIV टेस्ट। मिस, हमारे एज में कितना होना चाहिए या फिर कितना रहता है? क्या टेस्टोराइन्स करके कुछ
टेस्टोस्टेरोन, अच्छा। अभी आप तो 18-19 के होंगे आप। यस मैम। हाँ, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मेजरमेंट एक रेंज में रहता है, ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक कि भाई 10 ही होना चाहिए, जैसे हीमोग्लोबिन अपन बोलते हैं कि 12 to 14 होना चाहिए, उसी तरह से टेस्टोस्टेरोन का एक रेंज रहता है और डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरी के मेजरमेंट डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में रहते हैं। तो वो मेजरमेंट लेबोरेटरी के अनुसार एक नॉर्मल रेंज रहता है, उसमें रहता है। बट टेस्टोस्टेरोन इज मेन हार्मोन ऑफ बॉयज एंड एस्ट्रोजन इज मेन हार्मोन ऑफ गर्ल्स। एंड इसीलिए जब टेस्टोस्टेरोन स्टार्ट होता है, वो लगभग मैंने बोला ना 10 इयर्स से स्टार्ट होके धीरे 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 प्यूबर्टी टेस्टोस्टेरोन अपना ये बढ़ाता जाता है। 18 आते आते फिर मुस्टेचेस, बियर्ड्स जो आते हैं, फिर एक्ने आते हैं, फिर एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स का जो ग्रोथ है, इरेक्शन वगैरह, जो पेनाइल इरेक्शन, इजेक्यूलेशन, ये सब फंक्शन डेवलप होने में लगभग 18-19 इयर्स हो जाते हैं। तो दिस ऑल टास्क इज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। Okay, ma'am. Thank you so much. Now I would like to hand over session to Ila, ma'am, if she wants to say something. Yeah, ma'am, it was a very nice session, and I think many of the students opened up, basically because in the school also they had, actually many of the students, they are having a session, but in the Yes. college such kind of session is not there when actually they are in the developing stage. So it was really a very nice session, and the idea also was very good, Utkarsh. I think all the students really enjoyed and many of the doubts were cleared. Ma'am, I want to ask one or two questions. The first is about the diet and nutrition. You talked about that. And if we want to have the underweight child, no child, but if a regular 21, 22 years old, and she is my daughter I'm talking about, and she is very having hectic schedule, but she is underweight. And I'm trying to increase her weight actually for the last 3-4 years. And what diet she can have in her hectic schedule? Can you suggest something about that? अच्छा, if we देखो, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ओबेसिटी को टच किया था, बट आई डिडंट टच द अंडरवेट पीपल। अंडरवेट पीपल को भी वेट बढ़ाने के लिए जितना डाइट इम्पोर्टेंट है, उतना एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। जो वो एक्सरसाइज करेंगे तो उनका मसल मास बढ़ेगा थोड़ा। एंड देन डाइट में ऐसा नहीं है कि अपना वेट बढ़ाना है तो उन लोगों को बहुत ज्यादा बटर खाना है एंड स्वीट्स खाना है तभी बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। दे ऑल्सो रिक्वायर प्रॉपर बैलेंस डाइट टू इम्प्रूव देयर वेट, बट एक्सरसाइज इज मस्ट। एक्सरसाइज कर लेंगे ना, वो थोड़ा भी एक्सरसाइज करेंगे ना, फिर उनको जो खाना है वो लगेगा, एंड देन शी विल पुट ऑन सम वेट। But she can eat multiple times and she can have चीज ले सकते हैं वो। थोड़ा मिल्क प्रोटीन से वजन जल्दी बढ़ता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। मिल्क प्रोटीन से थोड़ा वजन जल्दी बढ़ता है। Okay. Eggs also? Eggs, not for weight gain exactly, but yeah, muscle mass increase होता है, तो eggs are good. They are very good proteins actually. Okay. And ma'am, we were talking about the tastes and all these kind of tastes and all. And what I suggest, actually, this we have done also in our family, that whenever a marriage is fixed, the boy and the girl, we took them to a neutral doctor, neutral gynecologist, not belonging to his family or her family. And the taste of both these were conducted. And at the any neutral doctor, where both of these in arranged marriage they will suggest, and the tests were taken, and the results were shared with both of them, so that they will understand the hygiene and this condition of boy and girl both. So I think that this will help whenever they are going for arranged marriage, right? Yeah, this is really true, because you know हमारे हॉरोस्कोप लेके वो लोग ऐसे मिलाते थे, मंगल है कि नहीं, ये है कि नहीं करके। बट आई फील कि रियल कुंडली तो यही है, वो देखना चाहिए कि भाई उनके रिपोर्ट्स कैसे हैं। बाकी अदरवाइज ऐसा होता है कि आफ्टर मैरिज दे कम टू नो कि इसका तो पीरियड आता ही नहीं था,
या फिर मतलब it happens. Yes. It should not be the base of marriage institute. Yeah. Yes. मैम वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड दैट मैम जो अभी आप ब्राइड एंड ग्रूम की बात कर रहे थे, तो अगर ब्राइड एंड ग्रूम का अगर AA पॉजिटिव या फिर BB पॉजिटिव रहा, तो मैम जो आगे का जो भी बच्चा है तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं क्या? नहीं, उनका दोनों का सेम ब्लड ग्रुप है, उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नहीं. नो नो. और एक मैम क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें अगर हम लोग जो भी इंजेक्शंस लिए जाते हैं, उससे मैम हम बॉयज के लिए कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? कौन सा इंजेक्शन? सर्वाइकल कैंसर? नहीं सर्वाइकल कैंसर नहीं मैम, बॉडी बिल्डिंग के लिए फॉर अ मसल. No, you should Steroids. never take those injections. Some take some pills, you know, to testosterone containing some pills. Even I don't agree कि आप लोग प्रोटीन का पाउडर ही पियो. मतलब अभी आपके उसमें रहता है ना कि जॉन अब्राहम के जैसा बॉडी बनाना है, एंड 8 पैक्स अभी तो निकले हैं, 6 में से 8 हुए हैं अभी. तो eggs are very good. If you take eggs, then egg protein is very good. प्रोटीन का पाउडर अगर आप फिर भी यूज कर लेते हो तो ठीक है, बाकी कोई भी इंजेक्शन, बिकॉज दैट कंटेन्स हॉर्मोन्स, दे आर स्टीरॉइड, सो you should never go for that. Okay ma'am, thank you so much ma'am. Now I could like to hand over session to Viraj. Thank you, Utkarsh. Ma'am, your session was too good. With this, we come to the end of our session. Thank you, ma'am, for a wonderful session. Truly, your words have enlightened our knowledge. And also today, you gave us a proper guidance on a topic on which people have a lot of problem but feel shy to ask, and thus build in misconceptions about it. After this session, surely the misconceptions would be cleared and people will have a proper knowledge about sex education. I would also like to thank our faculties, the entire EWT team, and our POs, Dr. Ela ma'am and Ashwin sir, for motivating and supporting us so that we could conduct this session successfully. And finally, I would like to thank all the attendees of the Zoom who have taken out the time to attend this session and make it a great success. Now, I would request Mrs. Ela ma'am to give us the permission to end this session. Yes, Viraj, yes. before that, I could like to suggest that please turn on your cameras. Yeah, Yes, I'll yes. request everyone to switch on their cameras so that we can have a snapshot. Switch on your cameras, guys. Wait, Viraj, host disabled है. Okay. Now It's done. हाँ. Thank you so much, guys. You can leave meeting. Thank you. Thank you, Asha ma'am, for giving us such a precious time today. Thank you so Thank much. you, ma'am. Yes, and that It was too a on the great day of, time with you, Paul. It was a yeah, great but that too time. also on the day Sunday, ma'am. You have devoted time for us. Thanks a lot, ma'am. Thank you very much. It was a great time, madam. Thank you. Yeah. Thank you, ma'am, for joining. I think this session was very important for all of us. We were able to open up to you and share our issues with you. Some people may have had similar issues. So if we felt shy, maybe someone else asked it for us. So thank you very much for taking all those questions and also explaining so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. ma'am. Very much. You can end the video.